Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. great. So, good morning, everyone. We will start our session on union budget again, and today we'll go for a kind of a deep dive into union budget, जिसके अंदर we will see the elements in the expenditure side as well as the capital receipt side. So these were the things that we had not done earlier. Let's quickly review what we had covered. Now we had started our course with talking about the structural aspect of the budget and the analytical aspect of the budget. The structural aspect of the budget is basically the anatomy of the budget, and the analytical aspect of the budget is basically the part of the budget where we understand that which why is a particular head increasing or why is a particular head decreasing. So उसमें जब एनालिसिस करेंगे कि बजट अच्छा है या नहीं है, जो वो नॉर्मेटिव एनालिसिस आएगा, देन वी विल कॉल दैट एज एनालिसिस. जैसे इस साल का बजट कैसा था. Guys, I would request some people from class 1 to leave the class and then join class 2, because this is at maximum 101 right now. प्लीज़ 4-5 लोग क्लास 1 छोड़ के क्लास 2 आ जाओ प्लीज़. ठीक है. It will help because the meeting is getting destabilized now. So we will see that जैसे इस साल का बजट अच्छा है या नहीं है, ये जब आप एनालिसिस करते हो तो आप एनालिटिकल पोर्शन पे आ जाते हो. देन we also saw the financial accounts of the country, and in the financial accounts of the country what we had seen was the first account was the consolidated fund of India, which is the main account, and जहाँ पर सारा पैसा आपका बजट से रिलेटेड जो पैसा होता है वो इसमें अकाउंट में जाता है. And even to take out 1 rupee from this account or to deposit 1 rupee into this account, you need the permission of the parliament. And there is no term called budget in our constitution. It is called as annual financial statement. Then the other major financial account is the contingency fund of India, whereas as the word suggests, it is for contingency, it is for emergency, and it has a corpus of 500 crore rupees, and it is directly in the hands of the President of India. However, if the money is utilized in this particular account, then it has to be replenished from the consolidated fund of India. तो मेन अकाउंट, अगर इसके अंदर आपने 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिया तो बाकी फिर बाद में जब आप 400 करोड़ रुपए ऐड करोगे इसमें, तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा, तो वो पार्लियामेंट की पासिंग की जरूरत है उसमें. And the third is the public account of India, where the government of India directly takes money from us, and it acts as a banker, where it also pays interest for the money that it's taking from us. And this is directly under the head of the executive, where the executive can spend this money as per their whims and fancies, but not exactly their whims and fancies, because there is a constitutional body above all of these, which is the Comptroller and Auditor General of India. तो कैग ऊपर बैठा हुआ है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये मनी जो है इसमें आपको पार्लियामेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा मैं रेलवेज पे इतना खर्च कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन पे इतना खर्च कर रहा हूँ, मैं से रोड्स पे इतना खर्च कर रहा हूँ. तो ये क्या कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ज़रूरत नहीं है पूछने की. Then the next thing we saw was the comparison between actuals, budget estimates and revised estimates. These are the areas that we had seen. These are the three major concepts that we had seen. We talked about the fact that every budget is an exercise into 3 financial years. The upcoming financial year, for example, now let me ask question. Next year budget कब present होगा guys? 1st February 2022. 1st February 2022 को बजट प्रेजेंट होगा. वो बजट कौन से साल का होगा? 22-23. ग्रेट. उसमें रिवाइज एस्टिमेट किसके होंगे? 21-22 के रिवाइज एस्टिमेट्स होंगे. और एक्चुअल्स किसके होंगे? 2021. ग्रेट. सो दैट मीन्स आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, आप आधे इको ऑनर्स के स्टूडेंट से पूछोगे तो उनको भी नहीं पता होगा. इको ऑनर्स से स्टूडेंट छोड़ो, इको ऑनर्स के टीचर से पूछोगे उनको भी नहीं पता होगा. ठीक है. एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. ठीक है. तो ये कंसेप्ट समझना आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन वी हैड ऑल्सो गॉन इनटू
रेवेन्यू रिसीट्स. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स जो है, हम रिसीट साइड पे जाते हैं तो रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में हमने सबसे पहले बात करी थी कि ये जो रिसीट्स हैं, रिसीट्स बेसिकली हो गया इनकमिंग ऑफ द मनी इनटू द बजट, और रेवेन्यू अकाउंट वो है जहाँ पर हम रेकरिंग के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर अब हर साल आपको पैसा आ रहा है. So when you talk about these receipts, these revenue receipts, so this can further be divided into tax receipts and non-tax receipts. Tax receipts के अंदर again you can have a further redivision into direct taxes and indirect taxes. ये हमने last class में हमने पूरा ये analysis किया था. We will go for even a deeper dive into this when we will have a GST topic as well. So आज आपका Delhi School of Economics में आज आपका कोर्स का डिस्कशन है. So I'll be participating in that. So probably today your course will be finalized, and once your course is finalized over the next 2 to 3 days, what you can do is you can then call up SRCC or call up Delhi School of Economics photocopy shop को, and you can buy those readings, you can get them couriered to your home. एंड जस्ट इन केस आपको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना है, बहुत लोग सॉफ्ट कॉपी पसंद नहीं करते, बट आई रीड इट ऑन एवरीथिंग ऑनलाइन. सो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आई विल प्रोवाइड यू ऑल दी रीडिंग्स विच आर देयर, ऑल ऑफ देम विल बी प्रोवाइडेड बाय मी. बट जस्ट इन केस इफ यू वांट टू कीप अ बुकलेट हैंडी, तो आपको यू कैन बाय दोज फोटोकॉपी नोट्स. देन कमिंग टू योर टैक्स एंड नॉन टैक्स हमने बात कर लिया. Then the other item that we were talking about was अच्छा ये अभी भी मैंने sorry guys इसको non tax करते हैं. So excuse me sir. Yes. Sir, can you please record the class today? The class is getting recorded. So ये non tax receipts है guys. So non tax receipts में we had seen interest received, dividend, user charges and external grants. ये हमने सारी साइड देख ली थी, ठीक है. And I also told you interest received कहाँ से आया था, कहाँ से आएगा guys? यस दीक्षा, डोंट वरी, मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों को केटर करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. जस्ट इन केस किसी को इंग्लिश का वो चाहिए हो तो प्लीज़ टाइप इट ऑन इन दी चैट बॉक्स. हिंदी चाहिए हो तो हिंदी में, ठीक है. पंजाबी चाहिए हो तो पंजाबी में ना. तेलुगु चाहिए हो तो आई वुड हैव टू कॉल माई वाइफ, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू दिस थिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ से आया था गाइज? ये इंटरेस्ट रिसीव्ड की आइटम कहाँ से आई थी? टेल मी दिस. Sir, from the loan we gave. उसका इंटरेस्ट आया था. ग्रेट. तो ये जो है आपने कहीं किसी को लोन दिया है, ठीक है, और वो लोन की जो आइटम है, वो जो आपने लोन दिया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की आइटम थी. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी कोई आइटम आई होगी लोन गिवन, तो उसका जो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है आपको हर साल जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, because it's recurring in nature, therefore interest receipt becomes part of your non-tax receipts. Then dividend, I told you that it basically comes from public sector enterprises, ठीक है, public sector enterprises, public sector banks and all departmental, जहाँ से भी आपको इनकम आएगी, departmental enterprises जहाँ से भी आपको पैसा आएगा, जहाँ पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है और वहाँ पर प्रॉफिट कमाया जा रहा है, तो उसका जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है वो गवर्नमेंट वो रखती है. इसमें एक मेजर सोर्स जिससे पैसा गवर्नमेंट आजकल उठा रही है वो आरबीआई है, क्योंकि आरबीआई के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, ठीक है. तो ये बेसिकली तरीका है डिविडेंड कमाने का. एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर एस्पेक्ट्स. नाउ the next thing is your capital receipts. Now capital receipts are further divided into two parts. Capital receipts होती हैं, capital receipts क्या होंगी? Capital receipts होंगी one time. These are one time in nature, non-recurring in nature. Yes. Sorry to disturb you, sir. So, but dividend is taxable in India, right? Then why do we call it a non-tax receipt? नहीं, टैक्सेबल तो धन्या टैक्सेबल हमारे लिए है. अगर मैं डिविडेंड रिसीव कर रहा हूँ एज एन इंडिविजुअल तो मेरी इनकम में ऐड होकर टैक्स लगेगा, बट गवर्नमेंट कमा रही है ना, ये तो गवर्नमेंट का अकाउंट देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट के लिए तो वो टैक्स इनकम नहीं है. टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? टैक्सेस से पैसा कमाना. नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती है? नॉन टैक्स से पैसा कमाना, टैक्स के अलावा जो पैसा कमा रहा है गवर्नमेंट. समझ में आया? Okay, yeah.
ठीक है, हम एज एन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। एज एन इंडिविजुअल अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो वो मेरी टैक्सेबल इनकम है। टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स रिसीट्स में फर्क है ना। The thing that I was telling was कि capital receipts are those receipts which are non-recurring in nature. You can think of them as one time in nature or non-frequent in nature. तो ये दो तरीके की होती हैं। एक वो receipts जिससे डेट क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास पैसा आ रहा है बट आपके सर पे उधारी भी आ रही है, ठीक है। और दूसरा नॉन डेट की आपके पास पैसा आ रहा है बट कोई उधारी नहीं आ रही है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड वेयर you are getting money which is of one time nature. This is not creating liability, not creating any liability. No concomitant liability is being created, ठीक है। In lieu of the money which we have received, one time money that we have received, it is not leading to a concomitant liability that is created for the government of India, ठीक है। नाउ गाइज थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग के साथ एडजस्ट करना, एज यू कैन सी दैट इट हैज़ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड गाइज, दिस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ माई हैंड राइटिंग, ठीक है। इट वॉज वे वर्स व्हेन आई यूज्ड टू अपीयर फॉर यूपीएससी। तो आई हैव माई सिंपथीज विद पीपल जिन्होंने मेरे पेपर्स चेक करे हैं, एंड अगेन दिस इज समथिंग अगेन नो वन विल टेल यू दैट हैंड राइटिंग डज मैटर, ठीक है। You cannot improve it over a period of say 6 months, but try to have a legible handwriting, because I've seen examiners marking better marks to someone who has a good handwriting, ठीक है। उसी में अगर आपको एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो वो पूरा आपका जो गैप होता है वो आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जो वेरिएंस है आप उसके हायर एंड पे आना शुरू हो जाते हो। तो गुड हैंड राइटिंग इज अ ब्लेसिंग, एंड जिनकी ख़राब है मेरी तरह उनको मैं कहूँगा थोड़ा बड़ा लिखो, सो दैट एटलीस्ट इट बिकम्स लेजिबल। नाउ कमिंग टू नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगी? सपोज एज अ हाउस होल्ड, अगर आप अपने घर पे सोचो, अगर आप कैसा आपके पास पैसा आ रहा होगा जो आपके पास वन टाइम पैसा आया बट उसके लियो में कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी, ऐसी कौन सी चीज़ होगी अगर आप अपने घर पे के बारे में बात करो तो? Sir, if I sell the asset. Sale of asset. तो दैट मीन्स अगर मैं फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल बेचूं, या मैं अपनी गाड़ी बेच दूं, या अपनी बाइक बेचूं, तो दैट मीन्स उससे मेरे पास वन टाइम पैसा आएगा, क्योंकि वो तो एक ही बार बिकेगी, बट उसकी वजह से कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई। Similarly, when the government of India sells its assets, there is no liability that is being created, and this is what this disinvestment proceed is. That there is no liability that is being created in lieu of your selling of your personal or your government assets. And government पिछले कुछ टाइम में disinvestment पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। Now, the reason that the government is basically focusing a lot on disinvestment is कि government ये जो अगर आप political economy की तरफ से देखो तो जो लोग हिस्ट्री से होंगे और जो लोग पॉलिटिकल साइंस से होंगे उनको पता होगा लेफ्ट एंड राइट। यस दिव्या बताओ। ओके, सो उनको पता होगा लेफ्ट पार्टीज एंड राइट पार्टीज, लेफ्ट ओरिएंटेशन एंड राइट ओरिएंटेशन इन द पार्लियामेंट। सुना है गाइस ये चीज? लेफ्ट पार्टीज, राइट पार्टीज, सेंटर पार्टीज? नहीं सुना ये? लेफ्ट पार्टीज कौन सी होती हैं, सेंटर पार्टीज? लेफ्ट विंग, राइट विंग। नहीं, विंग की बात नहीं कर रहा। रिलीजियस अलग चीज हो गई है, रिलीजियस अलग है, ठीक है, एंड क्या कहते हैं इकोनॉमिक अलग है, वो अलग है। इसका रिलीजियस कॉनोटेशन भी आ जाता है लेफ्ट विंग एंड राइट विंग, बट इन जनरल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहाँ से शुरू हुआ था? हिस्ट्री से लोग हैं हमारे पास क्लास में, हिस्ट्री BA प्रोग्राम हिस्ट्री से। So I think it was in one parliament. एक लोग लेफ्ट साइड बैठे थे, कहाँ कौन सा सिमी कौन सा है ये? यही मैं पूछ रहा हूँ। जर्मन? नो, फ्रेंच। ये जो कंसेप्ट है ये फ्रेंच पार्लियामेंट से शुरू हुआ, ठीक है, कि जहाँ पर आपने क्या किया, आपने बेसिकली डिवीजन कर लिया पार्लियामेंट का कि कुछ लोग लेफ्ट में बैठेंगे और कुछ लोग राइट में बैठेंगे, ठीक है, कुछ लोग राइट में बैठेंगे। ये जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं ना गाइस, ये बेसिकली
ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का रोल जो हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। लेफ्ट वाले जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ लेफ्ट पार्टीज। गवर्नमेंट इंडिया में सीपीआई, ठीक है, इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम, कई बार मार्क्सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सीपीआईएम हो गया, कई बार तृणमूल कांग्रेस को भी बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा कि लेफ्ट की तरफ है। कांग्रेस जो है वो सेंटर लेफ्ट है, ठीक है, वो इधर भी है, थोड़ा सा सेंटर में भी है, बट वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इज ऑल्सो टूवर्ड्स सेंटर लेफ्ट, ठीक है। आई एक्सप्लेन, आई मीन जस्ट अभी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। केरला में कौन सी पार्टी है पावर में? कोई केरला से हमारे क्लास में? एनीवन फ्रॉम केरला? कोई नहीं है So केरला? maybe TMC, right? टीएमसी? नहीं, अरे टीएमसी नहीं है। Then नो, AIDMK इज इन दिस थिंग सांची, तमिलनाडु, एंड वहाँ पर अभी भी AIDMK नहीं है, DMK है पावर में। कम ऑन गाइस, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये सारे तो ये सारा पढ़ना शुरू करो, कोई पॉलिटिक्स। वेस्ट CPIM, डेमोक्रेटिक। so CPIM. नो, CPIM नहीं है। लेफ्ट में पावर में कौन है वहाँ पर? CPIM power में है। यस, इट इज LDF। मैं वही देख रहा था कि LDF है। इट्स कॉल्ड LDF गाइस, LDF ना। तो ये जो हैं ये पार्टीज वो हैं लेफ्ट की पार्टीज। यस, ये लेफ्ट की पार्टीज वो होती हैं जो बेसिकली कहती हैं कि हमें मार्केट पे इतना भरोसा नहीं है, हर चीज़ सरकार प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एंड गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल को बहुत ज़्यादा मानते हैं लोग। हर चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, नौकरी गवर्नमेंट देगी, ठीक है। आपको अनएम्प्लॉयड हो जाओगे तो उसको वेलफेयर गवर्नमेंट देगी। तो हर चीज़ सरकार आपको प्रोवाइड कराएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार इज़ लाइक अ गॉड फादर फॉर यू, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की जो फिलॉसफी रखते हैं, वेयर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ह्यूज, उनको हम लेफ्ट पार्टीज बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, राइट पार्टीज वो होती हैं जो लिबरल फिलॉसफी रखती हैं। कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स फॉलो करता है? किसी ने वो देखी है, व्हाट वाज दैट शो? किसी को याद है? वो एक शो होता था, 5-6 सीजन आए हैं उसके। House of Cards. हाउस ऑफ कार्ड्स। एनी अरे आपकी अदालत नहीं यार। नहीं, आपकी अदालत नहीं, प्लीज़। हाउस ऑफ कार्ड्स, एनीवन फॉलोज हाउस ऑफ कार्ड्स? हाउस ऑफ कार्ड्स अगर कोई फॉलो करता है, इन जनरल अगर फॉलो करो, तो कैन यू टेल मी कि US पॉलिटिक्स में लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है? अरे कम ऑन, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है गाइस, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली शालिनी। लेफ्ट US के अंदर डेमोक्रेट्स होते हैं, जो ओबामा की पार्टी थी और जो बाइडन की पार्टी है। ये जो लेफ्ट वाले, जैसे मैंने बताया, लेफ्ट वाले क्या होते हैं? लेफ्ट वाले बेसिकली गवर्नमेंट के रोल को ज़्यादा मानते हैं। तो ओबामा केयर, अगर आपको पता हो, ओबामा केयर शुरू किया था, आप तो बहुत छोटे हो गए उस टाइम पे, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो ओबामा ने शुरू की थी। सिमिलरली आप इंडिया के अंदर आपने मेजर आपने सुना होगा, RTE सुना है गाइस, राइट टू एजुकेशन, RTI। Yes. ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर राइट्स दिए गए हैं लोगों को, वो सारा लेफ्ट पार्टी, वो सब कुछ कांग्रेस ने किया था UPA के टाइम पे, ठीक है। राइट वाली जो पार्टीज होती हैं वो लिबरल फिलॉसफी से आती है, वो लिबरल इकोनॉमिक फिलॉसफी से आती हैं गाइस। अभी यहाँ पर इकोनॉमिक फिलॉसफी की बात हो रही है, रिलीजियस फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है। अभी मैं रिलीजियस पे भी आऊँगा। तो जब लिबरल इकोनॉमिक फिलॉसफी के बारे में होती है, तो ये गवर्नमेंट को कम ट्रस्ट करते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। Therefore you see that right now the government is just trusting more in terms of वो, ये गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट हुई है, ये वाली गवर्नमेंट, इसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? बीजेपी की गवर्नमेंट के पीछे कौन खड़ा हुआ है? कौन पैसे दे रहा है इसको? व्हाट डू यू थिंक? इंडस्ट्रियलिस्ट। यू हैव देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें बेसिकली कॉर्पोरेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को बताने की जरूरत नहीं है कि किसने पैसा दिया है मुझे, ठीक है। तो इनके पास, फॉर एग्जांपल बीजेपी के पास, अगर 100 रुपये, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में 100 रुपये पैसे दिए गए हैं,
तो उसमें से 90 रुपीज़ जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं बीजेपी को ये पैसे? मेजरली इंडस्ट्रियलिस्ट से, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे? अंबानी हो गया, अडानी हो गए, ठीक है। ये जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये इनको फंड कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से इनका जो बेसिकली फ़िलासफ़ी होती है वो प्रो प्राइवेट सेक्टर होती है। तो इसीलिए ये कोशिश करते हैं कि यार गवर्नमेंट का रोल कम हो। गवर्नमेंट का रोल कैसे कम करेंगे? जब हम गवर्नमेंट की जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इनको उठा के एटलीस्ट जो लॉस मेकिंग इंस्टीट्यूशन उनको उठा के बेचना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल अभी एक IPO लेके आने वाली है LIC का, जो एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर IPO होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है LIC। तो सौजन्य, you might relate it to crony capitalism because the nexus between the capitalist class and the political class is not very clear, and it does happen in India कि you have a lot of crony capitalism, but again ये हर जगह है। यहाँ इंडिया के अंदर ये hidden है, US के अंदर तो बिल्कुल ओपन में होता है। US के अंदर तो you give political funding to as an individual I can donate to a particular player. So basically US में तो every particular organization wears a kind of an armband कि अच्छा यार, और every particular individual also wears a kind of armband कि बॉस मैं डेमोक्रेट हूँ, मैं रिपब्लिकन हूँ। इंडिया में इतना क्लियर कट नहीं है बिकॉज इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड रीजनल बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो इसलिए वी डोंट हैव अ टू पार्टी काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये एक वो है, बट येस इट डज लीड टू क्रोनी कैपिटलिज्म। और इसका ऑल्टरनेटिव यही है सुजन्या, इसका ऑल्टरनेटिव यही है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। आर यू सुजन्या, आर यू फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस? Yes, sir. हाँ, तो यू विल अंडरस्टैंड इन योर कोर्स देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में जब आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस में, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेट फंडिंग ऑफ दिस थिंग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज भी, कि रादर दैन पॉलिटिकल पार्टीज हम लोगों से एंड कॉर्पोरेट से पैसा उठाए, सरकार जो है वो सबको इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा दे देगी और कहेगी कि यही पैसा खर्च करो, ठीक है। तो देर आर ऑल्सो कैप्स ऑन हाउ मच दैट यू कैन स्पेंड, बट वो कैप्स कोई मानता नहीं है, ठीक है। एक टाइम होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज होते थे इलेक्शंस। आपके कॉलेज में, आपका कॉलेज जो है वो डूसू का पार्ट नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का पार्ट नहीं है, बट जो बाकी कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन में वोट करते हैं, वेरी पॉलिटिकली चार्ज अप एटमॉस्फेयर, एंड आई कैन टेल यू विद अ लॉट ऑफ अथॉरिटी बिकॉज आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ माय कॉलेज, ठीक है। सो एंड आई नो दैट हाउ इट यूज्ड टू वर्क, so the kind of politicization that was there, I mean it could put all these political parties to shame, जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स हम करते थे जब हम कॉलेज में होते थे, ठीक है। तो बट अब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ओवरसाइट आ गया है, विच इज़ फॉर गुड, कि कई बहुत ज़्यादा वायलेंस भी होता था एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग आते थे, तो वो सब काफ़ी हद तक कम हो गया, बट अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। एंड यू विल सी व्हेनेवर, अभी तो कोविड के चक्कर में इलेक्शन नहीं हो रहे, जब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे यू विल सी दी एंटायर, आप वो देखोगे साउथ कैंपस का जो मेट्रो है उसके नीचे वो ही बहुत सारे पोस्टर्स लगे होंगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे तो पोस्टर ही पोस्टर ज़मीन पे होंगे। तो अब गवर्नमेंट अब जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब बैन हो गया कि अच्छा आप इससे ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, तो अब रिस्ट्रिक्शंस लगनी शुरू हो गई ना। लेट्स नॉट डिविएट, ठीक है, कई बार मैं इधर उधर बहक जाता हूँ चीज़ों में, बट यहाँ तक समझ में आ गई, इनकी फिलॉसफी समझ में आई। राइट की फिलॉसफी है प्रो मार्केट, लेफ्ट की फिलॉसफी है प्रो गवर्नमेंट, पहले तो ये आपको समझना जरूरी है। अब इनकी रिलीजियस फिलॉसफी, अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बात कर रहे, अब हम रिलीजियस फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका, क्योंकि रिलीजन, इकोनॉमिक्स, स्टेट, इन सबको आप आइसोलेशन में देख ही नहीं सकते हो गाइस, ये सब कुछ एक साथ देखना ज़रूरी है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट डू यू थिंक गाइस, राइट वाले रिलीजियसली कंजर्वेटिव है कि लिबरल होते हैं? राइट वाले नो गाइस, राइट वाले बीजेपी के बारे में सोचो, बीजेपी इज अ लिबरल, रिलीजियसली लिबरल और रिलीजियसली कंजर्वेटिव। इट इज कंजर्वेटिव। जब आप हिंदुत्व के बारे में बात करते हो, आप कहते हो कि हमें एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है, ठीक है, हमने अपनी एक आइडेंटिटी प्रिजर्व करनी है। बीजेपी वेयर्स इट्स रिलीजन ऑन इट्स आर्म,
ठीक है, जिस तरह मतलब होता है ना, तो वो जो पार्टीज़ हैं, ये जो राइट पार्टीज होती हैं यूजुअली, और कंजर्वेटिव पार्टीज। सिमिलरली यू सी ट्रम्प को मेजर वोट कहाँ से मिलता था? कंजर्वेटिव। जैसा आप हमारे यहाँ पर होता है ना, हिंदू मुस्लिम्स वगैरह हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर मेजरली क्योंकि क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर 2 मेजर स्कूल्स, या तो आप लिबरल प्रोटेस्टेंट हो, या आप कैथोलिक्स में हो। तो कैथोलिक्स आर बेसिकली वही उसी तरीके से लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, जो चर्च में पूरा बिलीव करते हैं। सो सिमिलरली ये ट्रम्प को जो मेजर जो उनके बैकिंग कर रहे थे, वो सारे कंजर्वेटिव्स कर रहे थे। कैथोलिक जो गोइंग पीपल है वो सारे उनको बैक करते हैं। एंड जो बहुत सारे लोग जो सन्स ऑफ द सॉइल के कंसेप्ट में बिलीव करते हैं कि ये हमारा जो एरिया जिसका है उसी को वहाँ नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी फिलॉसफी हैं, ठीक है, नेशनलिज्म बहुत लेके आते हैं राइट वाले, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, नेशनलिस्टिक चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। वाइल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिकली वो इकोनॉमिक स्फेयर में वो लिबरल है। लेफ्ट वाले जो होते हैं वो रिलीजियसली वो there's a fine line to divide nationalism and jingoism. At times nationalism, extreme nationalism could lead to jingoism, but it's very hard to define. And when the world in itself is going towards nationalistic tendencies, you have no other option to also follow a similar trend. तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है सिमी, ये अक्रॉस दी वर्ल्ड है। चाहे आप यूएस में देखो, चाहे आप ब्राज़ील में देखो, चाहे आप साउथ अफ्रीका में देखो, चाहे आप इटली में देखो, आप यूके में देखो, तो अक्रॉस दी वर्ल्ड यू आर सीइंग दिस फिनोमेना। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल जो लिबरलिज्म की तरफ चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड हो गया या कनाडा हो गया। तो अगेन बट मेजर ट्रेंड पिछले 5-7 सालों का, 10 सालों का अगर आप देखोगे, एटलीस्ट पिछले 5-6 सालों का, तो इट्स मोर टुवर्ड्स एथनो नेशनलिज्म। देन लेफ्ट वाले जो होते हैं वो जो होते हैं वो लिबरल्स होते हैं इन देयर रिलीजियस फिलॉसफी, ठीक है। वो कहते हैं कि यार मुझे रिलीजन से ज़्यादा मतलब, जैसे कांग्रेस है, वो कहता है नहीं यार इधर उधर ज़्यादा हम नहीं करेंगे, हम मुस्लिम्स को भी करेंगे वो, हम हिंदूज़ को भी वो करेंगे, हम क्या कहते हैं रिजर्व कास्ट को भी वो करेंगे, हम सबको करेंगे। जबकि बीजेपी का पूरा फिक्स है कि यार बॉस हमारा जो मेन क्या कहते हैं वो है वोटिंग शेयर है वो हिंदूज़ हैं, एंड अपर क्लास, मेजरली अपर क्लास हिंदूज़ हैं, लालाज हैं, एंड बिजनेस कम्युनिटी है, उनका मेजर वोटिंग बेस ही वो है, ठीक है। एंड फॉर लेफ्ट पार्टीज इनका अक्रॉस दी बोर्ड रहता है, एंड मेजरली लिबरल्स ऑल्सो वोट फॉर देम। वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल विल ऑलवेज वोट फॉर पीपल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये समझ में आया गाइस, पोलिटिकल स्पेक्ट्रम एंड इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन द पार्लियामेंट। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो अब जब भी आपको दिखाई देगा कि यार आपकी सरकार जो है वो एक राइट फिलॉसफी की सरकार है इकोनॉमिकली, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट में ज़्यादा डालेगी। तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC का कुछ पोर्शन बेच रही है, एयर इंडिया को बेच रही है, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेचने के लिए कहा है, एक इंश्योरेंस कंपनी को बेचने के लिए कहा है। तो ये जो क्या कहते हैं राइट विंग गवर्नमेंट्स होंगी, ये गवर्नमेंट का रूल रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन द सेकंड आइटम हेयर इज लोन रीपेमेंट। यस Sir, government will only go for disinvestment when its firms are making losses, right? No, LIC लॉस नहीं बना रही था बदना। वही सर मेरे को डाउट था। हाँ। सिर्फ BSNL को बेचने, देखो लॉस मेकिंग कंपनीज को तो बेचना बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल एयर इंडिया को तो गवर्नमेंट जो है पिछले 10 साल से बेचने की कोशिश कर रही है, उससे घटिया कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। आप उसको, वो एक ऐसा पेशेंट है जो सिर्फ खून, आपका एक तरीके से आप एक पेशेंट को लेके आए हो हॉस्पिटल में और उसका सिर्फ खून बहे जा रहा है, ठीक है, वो हेमरेजिंग बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म्स में, हेमरेजिंग पेशेंट है। तो बस बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक के बाद एक उसको ब्लड की बॉटल्स लगाए जा रहे हो, उसका खून बहे जा रहा है, तो वेस्ट हो रहा है बिल्कुल। तो यू रादर या तो एम्प्यूटेट करो अगर कुछ उसको चोट लगी हुई है, या फिर यूथनाइज कर दो। यूथनाइज इज बेसिकली इंटेंशनली किलिंग समवन। तो
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल BSNL हो गया, MTNL हो गया, एयर इंडिया हो गया, दीज आर ऑल ब्लीडिंग दी इंडियन इकोनॉमी। और ये हम पैसा कहाँ से आ रहा है, हम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसी का पैसा यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हो गए, तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, इनको तो उठा के सबसे पहले बेचो जो आप जिस भी रेट पे आपको मिल रहा है। बट जो प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज है उसमें क्या होता है कि आप पूरा नहीं बेचने की कोशिश करते हैं, जैसा LIC का आप सिर्फ 5% बेचने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन हो गया कि आपने ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दिया और आपने पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया, तो पूरा का पूरा स्टेक बेच दिया या 51% से ज़्यादा स्टेक बेच दिया, सो दैट प्राइवेट सेक्टर पूरा मैनेजमेंट संभाल ले। But disinvestment is a smaller subset where you sell a small portion of the government asset, but you still retain the ownership and you still retain the just a second, and you still retain the management controls over it. तो उसको हम disinvestment बोलते हैं। तो you need to understand between disinvestment and this thing as well, privatization। दोनों में finer details हैं। Sir, if LIC is not making losses, then why is the government trying to sell it? Like, थोड़ा % भी why is it trying to? क्योंकि एक तो मार्केट में वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सरकार के पास पैसे नहीं है ना। सरकार का आज हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। सरकार इतना ज़्यादा बोरो कर रही है, सरकार के पास पैसा है मार्केट में। जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग टैक्स कैसे देंगे? जब लोगों का बिजनेस ही बंद हो रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा सरकार के पास? तो कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं से तो सब, इट्स समथिंग लाइक यू, अगर अपने आसपास कहीं इमेजिन करो कि बहुत सारे बिजनेस आजकल आपने देखे होंगे कि उन्होंने अपने स्पेशली छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी चांदनी चौक में से दुकानें हैं, जिनका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है बट कुछ चल नहीं रहा है, तो उनको क्या करना पड़ा? उनको अपने एसेट्स बेचने पड़े, राइट? तो अदन्या, तो ये बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे एसेट्स नहीं बेचे, उन्होंने कुछ अपने एसेट बेच दिए, सो दैट टू बेसिकली जो उनके एक्सपेंडिचर हैं और जो उनकी इनकम है उसको ब्रिज करने के लिए गैप को, कि ज़्यादा बोरो ना करना पड़े। सिमिलरली सरकार के साथ भी यही है कि गवर्नमेंट की इनकम इतनी नहीं है बट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फॉर दैट व्हाट इट नीड्स टू डू इज इट नीड्स टू समहाउ ऑगमेंट इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसी तरीके से रिसोर्सेज लेके आना है। तो एक मेजर वाइबल रिसोर्स है कि अच्छा प्रॉफिटेबल कोई अपनी कंपनी लो और उसमें कुछ 5 से 10% बेच दो, जिससे मार्केट में आपको पैसा भी बहुत सारा मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट की वैसी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन ऊपर गई हुई है। आप 5% बेचोगे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा आएगा उस 5% के लिए, प्रीमियम पे बिकेगा। मार्केट में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं कि अच्छा यार स्टॉक खरीदना, तो उस वजह से गवर्नमेंट को रेवेन्यूज अच्छे रियलाइज होंगे और गवर्नमेंट वो जो गैप है उसको ब्रिज कर पाएगी। लाइक ये कंपनी जो हमारा गवर्नमेंट कंपनीज को बेचता है, वो किसको बेचता है? लाइक बड़ी कंपनी। देखो, 2 तरीके होते हैं पूजा। एक तरीका होता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच दो। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब IPO, ठीक है, जैसे जोमेटो का आया था कि आम पब्लिक को बेचा आपने, किसी को भी खरीदना है जाके आके खरीद लो, शेयर खरीद लो, ठीक है। ये तो हुआ गोइंग पब्लिक। दूसरा हो गया कि आपने स्ट्रेटेजिक सेल किया, आपने पब्लिक को नहीं बेचा, आपने कहा कि यार मैं एयर इंडिया को पब्लिक को नहीं बेच रहा हूँ, मैं एयर इंडिया को बेच रहा हूँ। देयर इज दिस न्यू एयरलाइंस विच इज़ प्लानिंग टू बाय एयर इंडिया, मैं भूल गया उसका नाम, ओनर का भी नाम पढ़ा था मैंने। एंड सपोज है इंडिगो, सपोज मैं इंडिगो को बेच रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटेजिक सेल, कि मैंने मार्केट में नहीं बेचा, मैंने आके पर्टिकुलर प्लेयर को बेच दिया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक सेल। तो कई बार आप स्ट्रेटेजिक सेल करते हो, कई बार आप IPOs निकाल के आम पब्लिक के लिए ओपन अप कर देते हो। और यहीं पे ये देखो गाइज, मैंने स्ट्रेटेजिक सेल भी लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब क्या होता है कि आप पब्लिक के अंदर लाने के बजाय, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के बजाय आप उसको किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर को ही बेच देते हो। अच्छा, ये लोन रीपेमेंट क्या है गाइस? ये वन टाइम आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। श्वेता विल टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट एंड वो जो रिस्ट्रिक्शन है डिसइन्वेस्टमेंट भी, वो हम बात करेंगे अभी ना। व्हाट इज दिस लोन रीपेमेंट गाइस? लाइक सर, हमने पहले कभी किसी को लोन दिया था एंड वो लोन हमें रीपे कर रहे हैं। So like getting back the principal amount. प्रिंसिपल अमाउंट, एग्जैक्टली मुस्कान, ये प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने कभी लोन दिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट है ये, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको वापस मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल रहा है, और ये आपके पास इंटरेस्ट आ रहा था उसका।
सो ये आपकी होगी नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स। ये समझ में आ गया गाइस? इनमें से किसी में भी बेचते हुए इसमें से कहीं से भी आपको कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। क्लियर है? Yes, sir. Great. Let's move on to this. Now, the next thing is debt making capital receipts. Now, debt making capital receipts क्या होगा? Debt making capital receipts are those receipts जहां पर आपके पास एक liability create हो रही है. Liability is being created. That means आपके पास one time नेचर का पैसा आ रहा है, बट उसकी वजह से एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। तो ये कैसा पैसा होगा? ये बेसिकली पैसा होगा अगर आप मार्केट से सरकार बोरो करती है, और ये सबसे बड़ा मेजर सोर्स है मार्केट से बोरो करना। ठीक है, हाउ इज दिस बोरोइंग डन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बेचती है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं G-Secs, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कई बार इनको हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। यहाँ पर गिल्ट का मतलब होता है गोल्ड एज सिक्योरिटीज, क्योंकि गवर्नमेंट इनके ऊपर कभी फेल नहीं करेगा। गवर्नमेंट की ये सबसे सेफ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, सेफेस्ट होती हैं सिक्योरिटीज कि सरकार की बैकिंग है। इट इज समथिंग लाइक, आपने अपने करेंसी नोट देखा है गाइस? करेंसी नोट पे क्या लिखा हुआ होता है? आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सच एंड सच अमाउंट। तो इन सिक्योरिटीज पे भी ऐसे ही वही होता है। और तो जब सरकार प्रॉमिस कर रही है तो उससे बड़ा कोई प्रॉमिस नहीं होता। ठीक है, तो मार्केट बोरोइंग्स इस तरीके से होती है। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई से भी बोरो कर लेता है। अब ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से भी बोरो कर लेता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से भी बोरो करता है अपनी। ठीक है, LIC से बोरो कर लिया, ONGC से बोरो कर लिया, गेल सेल इनसे बोरो कर लिया। एंड बाहर से जब आप बोरो कर रहे हो किसी कंट्री से, या फिर आप IMF से बोरो कर रहे हो या वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं। मेजरली जो हम वर्ल्ड बैंक से बोरो करते हैं वो IBRD से बोरो करते हैं, IBRD। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से बना है। तो उसमें से जो मेजर बॉडी जिससे हम बोरो करते हैं वो नहीं, IBRD एंड IDC। Excuse me, sir. Your voice is cracking. Is it cracking for everyone? No, sir. No, sir. It's like connection. I think अपना कनेक्शन चेक करो प्लीज। ठीक है, तो Sir. यस, It is different keyboards from here. Sir, I have a doubt. एक सेकंड तो अदन ने पहले बोलो तुम। Yeah. Sir, ऐसा बोलते हैं, I read this somewhere कि when a note paper currency is made by RBI, it is a liability on India, whereas whenever a coin is made, it is asset. उसके लिए यू नीड टू गो इनटू द RBI का बैलेंस शीट। देयर इज समथिंग कॉल्ड सेनरेज। ठीक है, उसके बाद फिर उसके लिए हमें सेनरेज भी पढ़ना है। उसके लिए Coins are not issued by RBI; they are issued by the Ministry of Finance. हाँ, ये सारी लाइबिलिटी ही है अल्टीमेटली। ऑल करेंसीज इशूड बाय द दिस थिंग RBI इज बेसिकली लाइबिलिटी। बट कई बार ये भी आप देखना चाहिए कि उसको कॉइन्स के केस में कई बार क्या होता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखते हैं और उसकी वैल्यू भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं कि वेदर इट्स अ लाइबिलिटी। बट एवरी करेंसी विच इज़ इशूड बाय, इन जनरल ऑल करेंसी विच इज़ इशूड बाय द RBI इज कमिंग ऑन इट्स लाइबिलिटी साइड। एंड इसके जो डिटेल्स हैं वी कम टू दोज व्हेन वी स्टडी RBI का बैलेंस शीट। सो देर इज अनदर पेपर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन, there is a paper by the name of, which is a general elective paper, which is this thing, which is money and banking के अंदर ये आप चीज़ सीखोगे। कॉइन्स वर्षा, कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आई थिंक एक आध कॉइन कोई शायद से ये करता नहीं, आई थिंक एक आध नोट कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। All the coins and 1 rupee note. 1 rupee note, yes. On the coins and 1 rupee note as well. मैं वही सोच रहा था, एक करेंसी नोट भी कोई करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करा, बट उसका डिनोमिनेशन बहुत छोटा है, मतलब उसका जो अमाउंट होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो मैटर ही नहीं करता। मेजरली जो मैटर करता है वो करेंसीज करती हैं। एंड करेंसीज भी दो तरीके की होती हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव फुल बॉडीड करेंसी एंड नॉन फुल बॉडीड करेंसी।
ठीक है. एंड देन यू हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये भी होता है कई करेंसीज के अंदर. तो फिर हम डिस्कशन जो है हमारा चला जाएगा पूरा का पूरा. सो और लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग. फुल बॉडी, नॉन फुल बॉडीड एंड व्हाट वाज द अदर वन. अभी मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई थी गाइस? लिमिटेड एंड अनलिमिटेड. हाँ, लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. हाँ, व्हाट डू यू थिंक गाइस? आप अगर आपको किसी को 50,000 रुपये देने हो तो क्या आप 2-2 रुपये के सिक्के में दे सकते हो? नो सर. क्यों? दे आर लिमिटेड. लिमिटेड टेंडर्स हैं ये, लिमिटेड टेंडर्स होते हैं ये. ठीक है. तो करेंसीज के केस में ना फिर वो अगेन वी हैव टू सी द डिवीजन कि अच्छा आप 25 रुपये से ज़्यादा अगर किसी को आप दे रहे हो 10 रुपीज़ से या 5 रुपीज़ या 5 रुपीज़ से कम के कॉइन उसमें नोट्स एंड कॉइन्स में, तो आप दूसरा बंदा आपको कह सकता है कि बॉस मैं नहीं लूँगा. ठीक है. तो लिमिटेड इसलिए इन करेंसीज की कई बार लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट 10 रुपये के नोट एंड देन 20 रुपये के नोट एंड 1000 रुपये के नोट, तो 2000 रुपये का नोट, तो इन सब की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, अनलिमिटेड टेंडर्स होते हैं ये. तो इन सब कितना भी अमाउंट पे कर सकते हो. तो खैर दैट्स पूरा फिर बैलेंस शीट डिस्कशन हो जाएगा इस केस के अंदर कि अच्छा कैसे इशू होता है. उसके लिए में अगर लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए में एसेट कौन सा कोई क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए फिर हमें आरबीआई की बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू अवॉइड गोइंग इनटू दैट नाउ. तो ये हमारी जो डेट मेकिंग है, डेट मेकिंग यहाँ से आप डेट ले सकते हो. एंड इस डेट मेकिंग को जस्ट टेक अ पॉइंट हेयर, इस पूरे डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स को ही हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट. डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स आर कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट. This is the second easiest definition that you could have for fiscal deficit. The easiest definition of fiscal deficit is nothing but the borrowings of government of India. ये सारी क्या है? ये सारी गवर्नमेंट बोरो कर रहा है ना, ये इंटरनली बोरो कर रहा है, ये आरबीआई से बोरो कर रहा है, ये पीएसयू से बोरो कर रहा है, बाहर से बोरो कर रहा है. So you can call fiscal deficit as the borrowings of government of India. The easiest definition, borrowings of government of India. The alternative definition for this is debt making capital receipts, and there is another alternative definition which we will deal. Use a white pen. अच्छा, yeah, ठीक है. Is this pen better guys? Yes sir. ठीक है. So when we talk about borrowings, तो when we talk about fiscal deficit, तो fiscal deficit क्या है? Fiscal deficit या तो आप बोल सकते हो borrowings of government of India, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स. ना किसी को आपको कंफ्यूज करना है तो आप कौन सी डेफिनेशन यूज करोगे? Debt making capital. Debt making capital. दैट इज इकोनॉमिक्स. यही इकोनॉमिस्ट का काम होता है. हमारा जो बिजनेस है वो सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके लोगों को परेशान करना है. दिस इज व्हाट एन इकोनॉमिस्ट डज. ठीक है. सो ऐसे ही सिर्फ इसमें नहीं है, मेजर चीज़ों में के अंदर वी ऐड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज एंड सो दैट टू कंफ्यूज पीपल. और अभी मैं इसकी एक और टेक्निकल डेफिनेशन दूंगा. ठीक है. वो और ज़्यादा एक लेवल और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कि बिल्कुल ही समझ ना आए किसी को कि अच्छा बहुत से हो क्या रहा है. सो these are the things that you should know. ठीक है. यहाँ तक रिसीट साइड गाइज, रिसीट साइड इज डन फॉर अस. यहाँ तक समझ में आया? Now what I'll do is I will before going to the do you want to do capital side first या फिर receipt side को और डिटेल में जाना? चलो इसको देख लेते हैं. रुको. हाँ, let's see the side of, ये देखो, this is what I wanted to show you. रेवेन्यू, ये देखो रेवेन्यू रिसीट्स आपको दिख रही हैं यहाँ पर. रुको, इसमें तो मुझे Yes sir. पेन नहीं. Yes, sir. Let me just Yes sir. select the pen guys. ये देखो, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा. देखो ये आपकी रेवेन्यू रिसीट्स हो गई. ठीक है. और वही तरीका है, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट उस पिछले साल का और एक्चुअल्स. और देखो कैसे डिवाइड हुआ. रेवेन्यू को डिवाइड किया पहले टैक्स के अंदर और दूसरा नॉन टैक्स के अंदर. टैक्स के आइटम्स कौन कौन से आ गए? देखो कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, वेल्थ टैक्स आ गया. वेल्थ टैक्स अब नहीं है इसीलिए आपको यहाँ पर जीरो दिख रहा है, वेल्थ टैक्स हट गया है. फिर कस्टम ड्यूटीज़ आ गई.
ठीक है, सरकार कस्टम ड्यूटीज़ लगाती है जो बाहर से सामान आता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ आ गई। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ कई कमोडिटीज़ पे लगती हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, इन सब पे यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ लगती हैं। सर्विस टैक्स कुछ आइटम्स पे अभी भी लग रहा है, बट बहुत कम आइटम है। क्यों ये आइटम्स बहुत ज़्यादा कम क्यों हो गए हैं गाइस? कैन समवन टेल मी? बिकॉज ऑफ जीएसटी। बिकॉज ऑफ जीएसटी, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो है जीएसटी में एब्जॉर्ब हो गई हैं। बहुत कुछ कम आइटम रह गई हैं जो जीएसटी से बाहर है, उन पर कुछ टैक्स लग रहा है। एंड फिर देखो ये आ गया सीजीएसटी, आईजीएसटी, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है, एंड टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जो टैक्स देते हैं वो भी सरकार के पास ही जाता है, सेंट्रल सरकार, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज इज बेसिकली ओवर एंड अबव दीज यूनियन टेरिटरीज यू हैव दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उनके अंडर आ रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें से आप क्या करते हो, जो शेयर जो होता है, अच्छा ये चीज़ हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। लेस स्टेट शेयर, ये हम देखेंगे कि ये जो पूरा टैक्स सरकार ने उठाया, ये सारा है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सारे सोर्सेज से जिससे सरकार को पैसा मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट टेल मी गाइज, ये सारा का सारा पैसा बीजेपी गवर्नमेंट अपने पास ही रख लेगी क्या? नो सर। ये जो पैसा आईजीएसटी वाला जो पैसा है, ये भी उसको देना है आगे, ठीक है। और उसके अलावा उसको ये जितना भी टैक्सेस इनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो टैक्सेस कमाया, फाइनेंस कमीशन एक बॉडी के बारे में हम बात करेंगे जब हम 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस कमीशन एक बॉडी है जो बताती है कि बॉस हमारे जो स्टेट और सेंटर हैं उसमें दोनों में अनइक्वल बड़ी इनइक्वालिटी है। सेंटर बहुत पावरफुल है, स्टेट्स बहुत वीक हैं, तो सेंटर को स्टेट्स को पैसे देने चाहिए जो भी वो टैक्सेस से पैसा कमा रहा है। तो इसमें इसको मान लो कि ये एक बकेट है, इसमें पैसा आ रहा है हर जगह से, जो सेंटर पैसा ये जो सारे सोर्सेज हैं ये इधर आ रहा है। अब फाइनेंस कमीशन बताता है कि बॉस ये यहाँ तक भर गया है, इसमें से कितना पैसा सेंटर के पास रहेगा और कितना पैसा स्टेट्स के पास रहेगा। सो डिविजन ऑफ दिस money between center and states is done by a constitutional body called finance commission under article 280 of the constitution, ठीक है। सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से डिवीजन होता है, क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं डिवीजन के, जिसको हम देख के हम बताएंगे कि अच्छा कौन कौन कितना लेके जाएगा। सो वी विल सी ऑल ऑफ दैट व्हेन वी विल कम टू इट। बट ऑल ऑफ दिस मनी कैन नॉट बी हेल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, सम ऑफ इट हैज़ टू बी ट्रांसफर। तो इसीलिए हमने लिखा हुआ है लेस स्टेट्स शेयर, स्टेट का शेयर हटा दो उसमें से, तो आपके पास बचेगा नेट टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें से इस अमाउंट में से, इस ग्रॉस अमाउंट में से, ये क्या है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, इसमें से आप माइनस करोगे स्टेट का शेयर, तो आपके पास बचेगा नेट टैक्स रेवेन्यू बाय ऑफ द सेंटर। ये सेंटर के पास पैसा बच के रह जाएगा। अभी शालिनी ये कैपिटल रेवेन्यू के लिए नहीं है, ये अभी सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। दिस इज ओनली रिगार्डिंग टैक्सेशन, ठीक है। एंड वेयर डज टैक्सेशन कम शालिनी? टैक्सेशन कहाँ आता है? सर प्लीज रिपीट। मैं ये बोल रहा हूँ, योर क्वेश्चन, शालिनी का क्वेश्चन जो है अगर आप चैट पे पढ़ोगे तो वो है कि सर दिस इज फॉर कैपिटल रेवेन्यू एज वेल। ये कैपिटल रेवेन्यू के लिए नहीं है, ये सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स के लिए। रेवेन्यू रिसीट्स में भी टैक्स रिसीट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो हम क्या कह रहे हैं, जो फाइनेंस कमीशन है वो कहता है कि ये इसको बोलते हैं डिविजिबल टैक्स पूल। डिविजिबल टैक्स पूल, आप सारा का सारा जो टैक्सेस से पैसा है जो यूनियन गवर्नमेंट कमा रही है उसको एक बकेट में डालोगे, तो टैक्सेस का पैसा कहाँ पर आता है शालिनी? ये बताओ मुझे, टैक्सेस का पैसा रेवेन्यू अकाउंट में आता है कि कैपिटल अकाउंट में आता है? रेवेन्यू अकाउंट में आता है। दैट मीन्स सर रेवेन्यू का डिवीजन होगा, और रेवेन्यू में भी टैक्स रेवेन्यू में आता है ये भी, ठीक है। तो सिर्फ इसी का डिवीजन होगा। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू से कुछ शेयर जो है वो स्टेट्स के पास चला जाएगा। सजल, वी विल टॉक अबाउट नेशनल कंटिजेंसी कैलामिटी फंड, और ये NDRF जो है ये रिलीफ फंड्स होते हैं, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। इसके बारे में हम बात करेंगे लेटर ऑन कि ये फंड्स क्या हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो
यू कैन टेक दिस एज कि आपने आपके कंट्री के अंदर कई बार जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीच में you had this cyclone in Goa and Maharashtra. You also had a cyclone in West Bengal. सुना था? क्या क्या नाम थे उसके? Yeah, sir. Taute. Yes, sir. ताउते कहाँ पर आया था? In Arabian Sea. और दूसरा जो वेस्ट बंगाल में आया था उसका क्या नाम था? Come on guys. सर वाई से था कुछ वाई सर यास So yes. 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 Now, my assignment to you is you have to first find these are all cyclonic winds. ठीक है? स्पेशली गाइज जो सिविल्स वाले लोग हो, और ये मैं आपसे वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो प्रीलिम्स में भी आया हुआ और मेंस में भी आया हुआ है. यू हैव टू फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव नेम्स फॉर साइक्लोन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. दीज आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एक्सट्रीम विंड साइकिल्स. ठीक है, ट्रॉपिकल विंड्स के टाइप है. So like Willy or that typhoon. यस एग्जैक्टली, टाइफून, हरिकेन, विली विलीज. एग्जैक्टली दिस इज Yeah. टाइफून जो होता है हम इसको साउथ चाइना सी में टाइफून्स बोलते हैं. इफ इट कम्स इनटू अमेरिका, अगर ये अटलांटिक में होता है तो हम इसको हरिकेन्स बोलते हैं. विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको. ऑस्ट्रेलिया में विली. ठीक है, सेम चीज़ है. दीज आर ऑल ट्रॉपिकल विंड्स. ये सारे के सारे जो हैं ये 8 से 20 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड अबव एंड बिलो इक्वेटर में होते हैं. ठीक है, अगेन ज्योग्राफी का कंसेप्ट है. आई डोंट वांट टू गेट इनटू ज्योग्राफी कि क्यों जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं. माय क्वेश्चन टू यू इज, एंड दिस इज अ क्वेश्चन आउट ऑफ मेंस 2014, इज दैट हाउ इज नेमिंग डन ऑफ साइक्लोन्स इन इंडियन ओशन. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको पूछ. So there's a committee ना जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑल है. हाँ. लाइक अब दूसरा जो आएगा साइक्लोन उसका नाम गुलाब होएगा जो यस पाकिस्तान ने रखा है. एग्जैक्टली, यही मैं पूछ रहा था. इसके बारे में पढ़ना कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं. एवरी कंट्री टर्न बाय टर्न गिव्स अ नेम. ठीक है, सारी कंट्रीज पढ़ना, उसकी लिस्ट बनाना. चलो, सो दिस इज Sir, यस sir, I have that. यस सोचना. Okay, sir, before few months, the thing was in news that central governments were like not able to give shares of the state governments in GST, sir. तो अब लोगों ने तो GST भर दिया है, पर वो पैसा कहाँ गया सर? ओके सो द क्वेश्चन दैट सोजन हैज आस्क्ड कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को पैसा, वो जीएसटी पैसा नहीं दे रहा. देखो सोजाना, सेंटर जो है जब ये जीएसटी, इसके लिए ना आपको जीएसटी की पूरी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए साथ में. अभी हम इस उसमें क्लास में नहीं है, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सेंस दैट ऑल ऑफ यू एटलीस्ट कम टू अ बेसिक लेवल. देखो, जब जीएसटी शुरुआत हुई थी 2016 में, तो उस टाइम पे अरुण जेटली 2017 1 जुलाई 2017 को आया था जीएसटी. तो उस टाइम पे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने कहा था कि सारे स्टेट्स को बोला, पहली बात तो जब जीएसटी आया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, और ये इतना टैक्सेशन पावर का इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि इसके लिए आपको पार्लियामेंट में तो इसको पास करना ही करना है, लोकसभा एंड राज्यसभा में आपको 50% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको पास करना पड़ेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ना बहुत तरीके की होती हैं. देयर इज अ चैप्टर इन पॉलिटी which talks about constitutional amendments. Please read that chapter. कई constitutional amendments हैं जो सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाएंगे. कई constitutional amendments हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी. एंड जो सबसे टफ टाइप ऑफ constitutional amendment है उसमें 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, बट ओवर एंड अबव दैट 2/3 मेजोरिटी आपकी 50% स्टेट्स के लेजिस्लेचर भी उसको पास करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से. तो जीएसटी वॉज सच एन एग्जाम्पल. अब 50% स्टेट्स को आप बोर्ड पे कैसे लेके आओगे कि यार हम पार्लियामेंट में तो आपके पास पावर है, आपके पास लोकसभा में आपके पास नंबर्स है, राज्यसभा में आप लोगों को मना लोगे, आपके पास नंबर हो गए. बट हाउ विल यू नाउ कन्विंस एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, जिन स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके खुद की स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल योगी जी हो गए, या फिर यू हैव या फिर मध्य प्रदेश हो गया, या फिर यू हैव नहीं इधर तो है नहीं, या फिर कर्नाटका हो गया. इन सारे स्टेट्स में तो आपकी पार्टी है, तो आप उनको कह के आप बोल सकते हो कि भैया पास करना है तो वो कर देंगे. बट बाकी सारे स्टेट्स में क्या, तो यू वांटेड टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड. तो आपने उन सारे स्टेट्स को बोला कि देखो यार जीएसटी से डरो मत. अगर जीएसटी में आपको 100 रुपये मिल रहे थे 2000, मान लो आपको जीएसटी में 2017 में 100 रुपये मिल रहे थे,
सॉरी, आपको वैट से वैट से पहले वैट होता था ना, वैट से अगर आपको 100 रुपये मिल रहे थे तो मैं आपको अश्योर करता हूँ, सरकार आपको अश्योर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि 2018 में ये 114 होगा जीएसटी के अंदर, विच इज़ व्हाट 14% इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर। ऐसे ही इसका 14% नेक्स्ट ईयर, उसका 14% नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर 14% का इंक्रीमेंट होगा। अगर मान लो ये 114 की बजाय जीएसटी से जो पैसा आ रहा है, क्योंकि अब जीएसटी के एसजीएसटी से पैसा आएगा तो वैट नहीं लग सकता, अब तो कॉमन एक टैक्स आएगा। सपोज एसजीएसटी से सरकार को सिर्फ 108 रुपये मिले, किसी स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, से बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार को 2017 में 100 रुपये मिल रहे थे वैट से, 2018 में प्रॉमिस किया अरुण जेटली ने कि एसजीएसटी से जो आपको पैसा आएगा वो 114 आएगा। मान लो अगर वो 108 रुपये आया तो आपने तो प्रॉमिस 114 की है, तो ये जो 6 रुपये है ये सरकार आपको देगी कॉम्पनसेशन से, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। सरकार क्या करती है कि सेस लगाती है लोगों पे, आज की डेट में कॉम्पनसेशन सेस लग रहा है हम पे, उससे पैसा उठाती है और फिर उससे इन स्टेट्स को कॉम्पनसेट करती है जिनको हमने 14% प्रॉमिस किया था बट दे नहीं पाए थे। बट वॉट हैपन्ड आफ्टर द पैंडमिक वॉज कि सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर ही ढह गया हमारा, कि सरकार को भी जीएसटी से पैसा नहीं आ रहा है, सरकार को भी पैसा नहीं आ रहा, तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे पैसे देगी? स्टेट गवर्नमेंट्स का भी शॉर्टफॉल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शॉर्टफॉल हो गया, सेस में भी पैसा नहीं पड़ा। तो उस केस की उस प्रॉब्लम के अंदर स्टेट्स एंड सेंटर्स में अब लड़ाई होनी शुरू हो गई कि सेंटर स्टेट्स तो कह रहे हैं कि बॉस आपने तो कहा था कि आप 14% का हमें वो दोगे, बट अब आप पैसा ही नहीं दे रहे हमें। तो वहाँ पर फिर कॉम्प्रोमाइज़ निकला जीएसटी काउंसिल में कि अच्छा आप टैक्स आप लोन ले लो, कुछ पैसा तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी जो शॉर्टफॉल है उसका आप लोन ले लो लॉन्ग टर्म कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये सोल्यूशन निकला था। समझ में आया सौजन्य? अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं गया हूँ बट आपको एसेंस समझाया। थैंक यू सर। एवरीवन एल्स? यस सर। ठीक है, अभी हमने जीएसटी की बात नहीं करी, हम प्रॉपर जीएसटी के बारे में बात करेंगे कि हाउ जीएसटी इज कंपेयर टू अदर दिस थिंग। इनफैक्ट देर इज अ वीडियो ऑफ माइन, अगर what I'll do is I'll post it on the Google group as well as I will also post it on your WhatsApp group. There's a video of mine on GST, तो वो एक बार GST का वीडियो देख लेना, तो उससे आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि GST किस तरीके से इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ प्योर थ्योरी। ठीक है, सो दैट विल बी अ काइंड ऑफ प्री रीड बिफोर वी गो इनटू जीएसटी एज वेल। तो ये यहाँ तक हमारा। यस यस शिवानी। आंसर इन्हें प्रॉमिस क्यों करना होता है, लाइक अगर इन्हें खुद से बढ़ा चढ़ा के देना है तो? क्या फिर से बताओ। नहीं, लाइक आई एम सेइंग कि इन्हें प्रॉमिस ही क्यों करना है? ये प्रॉमिस इसलिए किया था, ये प्रॉमिस इसलिए किया था अरुण जेटली ने, क्योंकि आपको 50% स्टेट्स के लेजिस्लेचर में जीएसटी का बिल पास करवाना था। स्टेट्स कब मानेंगे? तब मानेंगे ना जब उनको अपना फायदा दिखाई देगा। तो स्टेट्स को जब आपने कह दिया कि हाँ बॉस हम आपको 100%, आपको 14% का, I'll explain it तन्मय, जब 14% का आपको 100% फ़ायदा दूंगा तभी स्टेट्स मानेंगे, तभी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अपनी पावर दे रहे हो। अभी तक यू हैव टू अंडरस्टैंड जीएसटी इन टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग गाइस, दैट अभी तक आपके पास पावर थी, ठीक है, अभी तक आपके पास पावर थी टैक्स करने की। जीएसटी के अंदर आपके पास पावर वो चली गई, अब वो पावर जो है वो जीएसटी काउंसिल के पास चली गई है, जीएसटी काउंसिल के पास चली गई है वो पावर। अब आप स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं रह गई है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी भी पावर अल्कोहल और पेट्रोल की है अभी भी, बट बाकी सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल के पास हो गई और वो पूरे इंडिया के लिए सेम होगा वो फिर। तो इसीलिए यू आर रिलिंक्विशिंग योर पावर एंड गिविंग इट टू अ जीएसटी काउंसिल। और इस काउंसिल में कौन बैठता है? इस काउंसिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं, वोटिंग होती है और उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि अच्छा बॉस ये जीएसटी होगा इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे। ठीक है, सो ये इशू है। नाउ कमिंग टू तन्मय's क्वेश्चन, 14% इंक्रीमेंट। ओके, सो तन्मय, द इशू वाज that in 2016, for example, a particular state, Bihar, was getting 100 rupees from VAT, which is value addition tax, which is the precursor of GST. Now, the central government had promised that states should come on board and pass the bill of GST in their legislatures
and if they pass it, then the incentive for them is that there will be an increment of 14, there will be an assumed increment of 14%. That means if the state of Bihar was getting 100 rupees from tax from VAT in the year 2017, the central government promised that after imposing GST in the year 2018, the state of Bihar will get 114 rupees. If the state of Bihar is not able to realize 114 rupees after the implementation of SGST or GST, the deficit will be plugged in by the central government through the compensation cess. So the compensation cess is basically imposed to basically take care of the commitments of the central government towards the states, that there will not be any shortfall because of the implementation of GST. And this promise was, this is a point that I had missed earlier, ये जो promise हमने किया था ये सिर्फ 5 साल के लिए किया था, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ठीक है. नेक्स्ट ईयर से ये प्रॉमिस खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आपको ये कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं है. Yes, sir. And about the GST Council, how is it involved? Where is it involved? हाउ इज इट, कुड यू कम अगेन? GST Council, like the deficit, whatever that is prevailing, is it decided by the GST Council? No. Deficit is something which is visible. I was promised 114 rupees. I am getting it's on paper. I am getting 108 rupees. That means 6 rupees I have to be compensated 6 rupees. So the money that you will get, this is the money, this is the tax this is a cess which is being imposed by the central government, which is GST compensation cess. You and me are paying this cess, and from this particular cess 6 rupees will go to Bihar. Similarly, some amount of money will go to Andhra Pradesh, wherever is the shortfall. So this particular head, GST compensation cess, is only collected to compensate states for their shortfall. So what is the role of GST Council? GST Council basically decides the rates. That, for example, what will be the GST on food items, what will be the GST on, say, any particular item, any commodity, computers, mouse, monitor, mobile phones, anything which attracts GST Council has to decide upon what will be the prevailing rate for any particular commodity. That is what, so that power is now taken up away from the state governments. Earlier a particular state could decide that boss मेरे इस commodity पे इतना VAT होगा, इतना sales tax होगा. Now you have a uniform market. There's one tax, one nation. Across nation, the GST on all these commodities will be the same, which will be decided by the GST Council. Yes, sir. Understood. Thank you. Yeah. And there are slabs for it. There are different slabs for it. There is a 5% slab, there is a 12% slab, there is an 18% slab, and there is a 28% slab. These are the 4 major kinds of slabs that are available in the GST. But there are other slabs as well. There is a 0% slab, there is a 0.25% slab, there is a 0.5% slab. So there are certain other slabs. I mean, apart from all these. So now the thing is, यहाँ तक सबको क्लियर है ये नेट सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू. So I have a doubt. हाँ. So now that you said that the contract was for only 5 years, and now that it's gonna end, so sir, now the states can get lesser than what they were collecting before, like less Of course, than. Of course. Now the central government can say to the states, go to hell. We don't care whether you're getting 1 rupee or not, or getting 1000 rupees. I don't care कितना आ रहा है. मेरा प्रॉमिस 5 साल का था, उसके बाद अब क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तुम्हारी सरदर्दी है बॉस, मेरी सरदर्दी नहीं है. मैंने 5 साल तक प्रॉमिस करना था, मैंने कर दिया. So now the states, they can fight back also, no? No, how will you fight back? You have already given that constitutional power. आपने एक बार तो अपनी पावर दे दी, आपके पास पावर थी, अब तो जीएसटी काउंसिल के पास पावर है, अब लड़ते रहो जीएसटी काउंसिल में. तो सर अब when we अगर if they don't get any revenue, then how will they run the state? That is their responsibility. अरे तो सर आएगा कहाँ से, मतलब अरे वो अल्कोहल से कमाओ, पेट्रोल से कमाओ, अपने पब्लिक एसेट्स बेचो. ये सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं लॉस मेकिंग क्यों हो रही हैं?
फॉर एग्जाम्पल पंजाब इज अ ह्यूज लॉस मेकिंग स्टेट. क्यों? क्योंकि फ्री में पावर देते हैं, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ्री में वो दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं. आप चार्ज करो ना इनको. तो स्टेट्स हैव टू सर लर्न. ऐसे तो आम आदमी पार्टी भी दे रहा है. हाँ, आम आदमी पार्टी भी दे रहा है, बट आम आदमी पार्टी के पास रेवेन्यू खूब सारा है, इसलिए वो अफोर्ड कर सकता है. कि हमारे पास आम आदमी पार्टी के पास रेवेन्यू का इतना बड़ा सोर्स पड़ा हुआ है, और आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, उसको पुलिस पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता. क्योंकि पुलिस जो है, जिस पे 4,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सेंट्रल दिल्ली पुलिस पे, वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. तो आम आदमी पार्टी इज इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन इन दैट वेज. So basically, पार्टी रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट करती है? क्यों? आप उनके पास टैक्सेस जो आप लेते हो, जो आप अगर जो लोग पेट्रोल खरीदते हैं, जो लोग अल्कोहल खरीदते हैं, जो जीएसटी से पैसा आ रहा है, वो सारा आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है. सर वैसे ही बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब लॉसेस में क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे सब्सिडीज देते हैं. वो प्रॉफिट की तरह, वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते ही नहीं है. उनको होता है कि वोट मिल जाए. फॉर एग्जांपल, जैसे ही पावर में आएंगे वो कहेंगे कि मैं सबके लोन माफ़ कर दूंगी, सबके. अगर आप सबके जब लोन माफ़ करने की बारे में बात हो रही है, यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग फॉर अ लोन दिस थिंग. तो उस केस के अंदर ये कौन बेयर कर रहा है ये टैक्स रेवेन्यू? ये जितना भी ये सब्सिडी आ रहा है, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट को बेयर करना है. तो आप पॉलिटिकल वोट जीतने के लिए आप बहुत सारी सब्सिडी दे देते हो, बट आपके पास उतना पैसा ही नहीं है उसको अफोर्ड करने के लिए, इसलिए वो डेफिसिट में होते हैं. सर फिर ये लोग एग्री क्यों कर गए 5 ईयर पहले? ये उस टाइम पे अब इन्होंने गलती कर दी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम धीरे धीरे ये इंप्रूव होगी चीज़ें, धीरे धीरे. अभी तो सिर्फ नेगेटिव्स दिख रहे हैं. धीरे धीरे व्हेन यू विल सी 5 years और 5-7 years डाउन द लाइन, आपके जीएसटी के रेट सिर्फ 2 रेट्स हो जाएंगे. एक हो जाएगा 12% का रेट, एक हो जाएगा 18% का रेट. और स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और लोगों को, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, वो लोग नहीं बच पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ अब पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक हो रही है. सो नो वन विल बी एबल टू एस्केप फ्रॉम दिस इकोसिस्टम ऑफ जीएसटी. ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू होगा, फिर उसके बाद स्टेट्स को फायदा हो जाएगा. अल्टीमेटली इट इज़ इन नेशंस बेनिफिट. द प्रॉब्लम इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ, एंड वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम. जैसे सारी दुनिया के साथ टफ टाइम है, हमारे साथ भी टफ टाइम है. गिव इट another 3-4 years and it will all stabilize. So this is definitely a better improvement and a better scenario than VAT. सर जैसे अभी ये गवर्नमेंट अभी करंटली है और वो लॉसेस में है, तो आफ्टर द एंड ऑफ दिस टेन्योर तो जो लॉसेस हैं वो नेक्स्ट गवर्नमेंट भी करेगी. बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्या ये गवर्नमेंट settle करेगी? नेक्स्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी. तो it will have to make a strategy. बिल्कुल, जो पाप यूपीए गवर्नमेंट ने करे थे, वो एनडीए भोग रही है इस वक्त, जिसको ऑयल बॉन्ड्स बोलते हैं. अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. ये पुराने पाप जो हैं यूपीए गवर्नमेंट करके गई है, और उसकी भरपाई एनडीए गवर्नमेंट कर रही है आज के लिए. जब सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो लाइक दे आर नॉट एबल टू पे द स्टेट शेयर्स बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है. तो दूसरे जो सोर्स है उससे तो लेना चाहिए ना सर, बिकॉज जब पैंडेमिक में ना पॉजिटिव नंबर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, तो जो फॉर्म लॉज है उनमें तो लाइक बायर्स के लिए लेवी, सेल्स, मार्केट प्राइस, टैक्स सब कुछ अबॉलिश कर दिया गया है. वो तो एक रेवेन्यू सोर्स था ना, तो उससे तो पैसे कलेक्ट कर सकते थे. तो उससे प्रॉब्लम सोजाना ये है. सोजाना आई विल कम टू योर पॉइंट. एग्रीकल्चर इन जनरल किसी भी स्टेट में टैक्स नहीं होता, और एग्रीकल्चर से इन सोर्स से ज़्यादा स्टेट्स को फायदा नहीं होता. ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है नहीं. 2/3 ऑफ ऑल रेवेन्यू विच एवरी स्टेट गेट्स इज फ्रॉम अल्कोहल एंड पेट्रोल. तो इसलिए वो उनको बढ़ाया जा रहा है. बट यू हैव टू थिंक ऑफ मोर इनोवेटिवली. आपके पास हर स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी बेकार की लैंड पड़ी हुई है. आप अपने स्टेट्स में देखो, आपको खूब अपनी स्टेट की लैंड बेकार सी पड़ी हुई मिल जाएगी, कुछ नहीं हो रहा. और प्राइम एरियाज़ में, बिल्कुल प्राइम एरियाज़ में आपको बहुत सारी लैंड मिल जाएगी जो खराब है. वाई डोंट यू सेल दैट लैंड? वाई डोंट यू मोनेटाइज दोज एसेट्स? तो यू हैव टू थिंक इनोवेटिवली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वाई कांट यू टैक्स एवरी कार जो पेट्रोल कार, या जैसे ऑड इवन है, अगर आप ऑड डेज पे कार लेके आ रहे हो, इवन कार लेके आ रहे हो, तो उस पर आप टैक्स लगाओ, डेली का टैक्स. उस तरीके से, तो इस तरीके से यू हैव पार्किंग टैक्सेस बढ़ा दो, और तो इस तरह कंजेशन टैक्स लगाओ. तो इस तरीके से यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग अबाउट कि किस तरीके से रेवेन्यू रेज किया जाए. ठीक है. ये एंटरप्राइजिंग तरीका है.
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर Like, so एग्जाम्पल. if we have no means for gaining the tax revenue, then we can try and absorb non-tax revenue in terms. हाँ, नॉन टैक्स से सोचो, नॉन टैक्स से सोचो. I'll give you another example. And innovatively how I'm working with a project for नीति आयोग जिसमें इन्फ्लेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं कि अच्छा बॉस अगर इन्फ्लेशन से पोटैटोज में या अनियंस में हो रहा है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए. तो इसमें बिजनेस लाइक अप्रोच है हमारा कि अच्छा बॉस कितना अनियन उग रहा है, आप उसको पूरे तरीके से ट्रैक करते रहो. फिर उसके बाद ट्रैक करो कि कितनी बारिश होने वाली है. आपको अगर इन्फ्लेशन ट्रैक करना है मान लो किसी क्वांटिटी का, तो आप ये देखोगे ना उस एरिया में बारिश कितने होने वाली है. तो इस तरीके से एक बिजनेस अप्रोच है. I'll give you another example. This is not a perfect example. This is a better example. आप लाइटिंग एंड सैटेलाइट्स की लाइट्स के बेसिस पे आप देख सकते हो कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं और कौन से एरिया में ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं सैटेलाइट की लाइट से. एंड दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट आई एम टेलिंग यू. किस एरिया में सैटेलाइट्स की किसी ने गाइस लाइट्स देखें, सैटेलाइट से रात को जो लाइट्स दिखती हैं नीचे, देखा इंडिया का मैप जगमगाता हुआ देखा कभी? Yes, sir. तो अगर आप दिल्ली का मैप देखो, ठीक है, दिल्ली, अब इंडिया को छोड़ो दिल्ली में आ जाओ, तो व्हाट डू यू थिंक गाइस सबसे ज़्यादा लाइट कहाँ से इमिट हो रही होगी, सबसे ज़्यादा लाइट रोशनी कहाँ से आ रही होगी दिल्ली के अंदर? Metros. नहीं मेट्रो नहीं, एरिया की बात कर रहा हूँ. Industrial areas like Noida. नहीं, रात की बात हो रही है, रात को इंडस्ट्रीज नहीं चलती. आई एम टॉकिंग अबाउट एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज. कौन से एरिया में? नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली? I think sir South Delhi. साउथ दिल्ली, क्योंकि साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते होंगे, सबसे ज़्यादा एसी चलते होंगे वहाँ पर, ठीक है. तो उसकी एनर्जी So South Delhi comes in GK or no Greater Kailash. नहीं जीके साउथ दिल्ली में आता है, साउथ दिल्ली जीके में नहीं आता. हाँ वही मतलब. हाँ ठीक है, उल्टा मत समझो उसको, ठीक है. तो ये टिपिकल होता है कि जीके, ठीक है, बट साउथ दिल्ली जीके से बड़ा है, ठीक है. तो साउथ दिल्ली के अंदर आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी ईस्ट दिल्ली के कंपैरिजन में, अगर मान लो, ठीक है. तो यू कैन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ सी दिस कि यार बॉस ये लोग एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यहाँ पर बिजली की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी की कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, ये लोग अमीर लोग हैं, इनसे ज़्यादा पैसा लो, और जो ईस्ट दिल्ली में उनसे कम पैसा लो, ठीक है. इस तरीके से यू कैन थिंक ऑफ डिविजन्स ऑफ मनी. तो यू हैव टू बी वेरी इनोवेटिव इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन पावर्स, तभी तो आप पैसा कमा पाओगे. ऐसे तो नॉर्मल तरीके से कैसे कमा लोगे आप, जो आपके पास ज़्यादा पावर्स रह ही नहीं रही हैं. तो जो आपके पास सर है, हमें पब्लिक का भी तो सोचना चाहिए ना, जैसे आप बोल रहे हो और इवन टैक्स चार्ज कर सकते हो, हाँ, यहाँ but- चार्ज कर सकते हो, फिर वो चार्ज तो हमसे ही होगा ना सर. बिल्कुल होगा, बट और जाएगा किसके पास? हो जाएगा तो गरीबों के पास. गाड़ी जो अफोर्ड कर सकता है वो तो अमीर आदमी ही होगा. मत चलाओ आप पब्लिक सेक्टर के, आप बस में जाओ, कोई कौन कह रहा है? आप बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दो, यही पैसा यूज़ करो एंड हैव अ वेरी गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिस स्ट्रक्चर. एंड इन फैक्ट द बेस्ट ऑफ द सिटीज़ आर नॉट दोज जिनके पास बेस्ट कार्स होती हैं या बेस्ट हाईवेज होते हैं या बेस्ट रोड्स होती हैं, बेस्ट फ्लाईओवर्स होते हैं. द बेस्ट ऑफ द सिटीज़ इज जहाँ पर आपको अपने ऑफिस या स्कूल या कॉलेज जाने के लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको साइकिल कर सकते हो. पेरिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. This is called as urban planning, guys. This is again something that you will study in either in geography or in your UPSC. So Australia also. हाँ, आपको आपका प्लान्ड सिटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आपको साइकिल में जाओ ना यार. यूएस और कई जगहों पे ऐसा होता है कि लोग स्केटबोर्ड्स पे जाते हैं अपने ऑफिस, ठीक है, साइकिल्स पे जाते हैं अपने ऑफिस. तो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर सिटी एंड दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड rather than having traffic jams. So this is the approach of urban planning. Again guys, हम बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं इधर उधर अपने concept. Sir, one thing. Sir, I was asking कि गुजरात जहाँ पे अल्कोहल नहीं मिलता है, हाँ. उनका क्या होता है? उनको कहाँ से आता है पैसा? इंडस्ट्रीज से और पैसों और पेट्रोल से. ये सूची फिर हम आपको उस टाइम पे देखना पड़ेगा कि अच्छा ये रेवेन्यू जो है 2030-2035 के बाद से 2035 के बाद यू विल नॉट सी एनी पेट्रोल और डीजल कार्स, यू विल ओनली सी इलेक्ट्रिक कार्स. So Suchi's question is that what will happen to this revenue? Then you would have to find alternative sources of revenue, and this is something that you need to plan right now. आप ये नहीं है 2022-2032 में आप सोच रहे होंगे कि बॉस अच्छा अब क्या करें हम, अब तो हमारे पास पेट्रोल का पैसा नहीं है. So you have to be innovative, you have to think right now. I'll give you an example of सिंगापुर ने आज से 10 साल पहले ऐसी जगहों पे मेट्रो स्टेशन खोल दिया जहाँ जंगल थे, ठीक है, मतलब प्रॉपर कोई आसपास रह ही नहीं रहा, बट मेट्रो स्टेशन बना के छोड़ दिया.
क्योंकि इट न्यू कि 10 years डाउन द लाइन पीपल विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ दिस एरिया एंड टुवर्ड्स दैट एरिया, एंड इसलिए वहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी चाहिए होगी. इंडिया में हम ऑपोजिट करते हैं. इंडिया में पहले हम बसेरा बैठा लेते हैं, फिर उसका सोचना अरे यार अब यहाँ से जाएंगे कैसे, फिर यहाँ मेट्रो बनाओ फिर उसके बाद बैठ के. तो But sir, maintenance cost भी तो आती होगी. हाँ, बट आज की डेट में कॉस्ट करना सोचो, 10 साल पहले अगर गुड़गांव में मेट्रो बन गई होती तो उसकी कॉस्ट कम होती कि आज की डेट में कॉस्ट कम होती? 10 साल पहले कम बिल्कुल, होती, sir. एग्जैक्टली. दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग. Yes, sir. तो ये सारी चीज, पर प्लानिंग भी करके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है इंडिया में. अरे बात प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों की है. मैं सिर्फ प्लानिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ प्लान करके इम्प्लीमेंट कर दो उसको. ठीक है. तो जैसे नोएडा में आज की डेट में एयरपोर्ट आ रहा है और साथ साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है. सेक्टर 150 देखो आप, पूरा एक हब बनना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जेवर एयरपोर्ट आ रहा है. ठीक है. तो यू नीड टू थिंक ईयर्स अहेड टू बेसिकली स्ट्रैटेजाइज कि किस तरीके से मैं रेवेन्यू कमाऊंगा, किस तरीके से हमारा एक्सपेंडिचर होगा. टूरिज्म रेवेन्यू आई नीड टू चेक टूरिज्म रेवेन्यू कहाँ आएगा. टूरिज्म का रेवेन्यू मोस्ट प्रॉब्ली स्टेट्स के पास जा रहा होगा. सो आई थिंक ये स्टेट्स के पास जा रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कोई हेड नहीं है उसके ऊपर. तो इन ऑल लाइकलीहुड इट्स गोइंग टू स्टेट्स. देन यहाँ तक गाइस क्लियर है? टैक्स पार्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस. Like every relevant question. Like the center give revenue to state government or the state government give revenue to the like vice versa. नहीं, उल्टा नहीं होता. प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में. आर्टिकल आई एम फॉरगेटिंग द आर्टिकल. 250 समथिंग है, 256 257 नहीं, आई एम फॉरगेटिंग द आर्टिकल. बट है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, बट यूज़ नहीं होता. Yes, Sojanya, actually में the initiation of GST was in 2010 under P. Chidambaram. But again, as I told you कि इसके लिए consensus चाहिए. आपके पास लोकसभा में भी पावर होनी चाहिए, आपके पास लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, राज्यसभा में 50% मेजोरिटी होनी चाहिए, एंड देन 50% स्टेट्स में 50% स्टेट्स को भी आपको कन्विंस करना होगा. तो all of that was very difficult for them. So you need a lot of political power to implement these things, guys. And political capital as well. सर हम जब वैट टैक्स थे तब ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड थे या जीएसटी में हम ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है? देखो, GST in any case is a better system than VAT. Again, I'm not going to get into the detail. There's something called tax cascade. So cascading effect of taxes and IT. There's something called ITC as well. तो टैक्स क्रेडिट जो मिलता है, वो सारी चीज़ें अगेन आई डोंट वांट टू गेट इनटू. फिर हमारा पूरा डिस्कशन GST के ऊपर चला जाएगा. व्हाट आई डू इज आई सेंड यू द लिंक ऑफ द वीडियो. यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड यू विल बी एबल टू बेटर ग्रास्प GST विद दैट. एंड जब हमारी रीडिंग के बारे में आएंगे तो मैं आपको डिटेल में पूरा समझाऊंगा GST कैसे कैलकुलेट होता है, और वो वैट, अगर GST और वैट दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करेंगे हम सारे, एंड देखेंगे कि अच्छा इतना रेवेन्यू हो रहा है GST में, इतना रेवेन्यू हो रहा है वैट में. ठीक है. तो उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर है. ओके सर. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है गाइस? आई होप टैक्स रेवेन्यू तक सबको यहाँ तक लाइन खिंच जानी चाहिए सबके लिए. हाँ, यहाँ तक लाइन खिंच जानी चाहिए. नाउ नॉन टैक्स में हमने क्या देखा? इंटरेस्ट रिसीट्स देखा, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स देखा, एक्सटर्नल ग्रांट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज, जो बाकी सारे सोर्सेज जो हो गए, और रिसीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. ये आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज हो गए. ठीक है. तो टैक्स और नॉन टैक्स को ऐड कर दोगे. सेंटर का शेयर ऐड करना है गाइस, पूरा मत ऐड कर देना. ध्यान रखना, मैं न्यूमेरिकल भी आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है. इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इसी के ऊपर. आप जो सेंटर को पैसा मिला, सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. एंड कैपिटल रिसीट्स में हमने नॉन डेट देखी थी, रिकवरीज एंड लोन्स एंड एडवांसेस, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, एंड Sir, यस, sir, can you just repeat that total revenue received वाला thing? I have to write. टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स प्लस नॉन टैक्स, दैट इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. टोटल रेवेन्यू रिसीट्स क्या है?
टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। तो टैक्स में आप कौन सी टैक्स डालोगे? सेंटर्स नेट शेयर, जो स्टेट्स को चला गया वो सेंटर के पास क्यों रहेगा? तो आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस लेस स्टेट शेयर बिकम्स सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू, दैट प्लस योर नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन दोनों को ऐड करोगे आपका टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, आर। So can you please explain it again? It's too confusing. ओके होल्ड ऑन। Or you can write down. ओके देखो, हमें रेवेन्यू रिसीट्स देखना है क्या होती है, हमें रेवेन्यू रिसीट्स देखना है, ठीक है। व्हाट आर रेवेन्यू रिसीट्स? रेवेन्यू रिसीट्स आर योर टैक्स रिसीट्स, और टैक्स रिसीट्स कौन सी हैं? नेट, जो सरकार को मिली, ठीक है। ये आपकी हो गई रेवेन्यू रिसीट्स, और यही है लिखा हुआ है 1A प्लस बी, ये 1A है और प्लस 1A प्लस 2। क्लियर गाइस? रेवेन्यू रिसीट्स इज क्लियर? Yes, sir. ठीक है। नाउ कैपिटल रिसीट्स, सिमिलरली कैपिटल रिसीट्स में क्या होगा? डेट मेकिंग एंड नॉन डेट मेकिंग एंड डेट रिसीट्स, ये दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल कैपिटल रिसीट्स आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, टोटल कैपिटल रिसीट्स। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रॉडाउन ऑफ कैश बैलेंस, उसको भूल जाओ अभी। ड्रॉडाउन ऑफ कैश बैलेंस क्या होता है? once you add your capital receipts and revenue receipts, you will get your total receipts. Total receipts क्या होगा? capital receipts प्लस ये वाली revenue receipts, total revenue receipts। या फिर आप कह सकते हो total receipts क्या होगा? total receipts क्या होगा? ये वाली आइटम प्लस total capital receipts। this will give you total receipts, पूरा जो पैसा So it's been like bit difficult, like not bit difficult, it's confusing. Like रुक center net tax जाओ, बता रहा हूँ, होल्ड ऑन। Okay, thanks. ना, हम बात कर रहे हैं पहले रेवेन्यू रिसीट्स की। व्हाट हैज हैपेंड टू माय पेन? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? टैक्स एंड नॉन टैक्स। इसमें टैक्स में कौन सी रिसीट लोगे? ग्रॉस टैक्स रिसीट्स की नेट टैक्स रिसीट्स? नेट लोगे ना, दैट मीन्स ग्रॉस टैक्स रिसीट्स माइनस स्टेट्स शेयर, ये आ गया आपका नेट टैक्स रिसीट्स। ये आप ऐड करोगे, ठीक है। इसको लिख लो आइटम 1। सेकेंड आइटम जो आप ऐड करोगे वो होगी नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये आपकी इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल रेवेन्यू रिसीट। यहाँ तक क्लियर है? Yes. फिर हमारे पास आया कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स दो तरीके की हैं, डेट मेकिंग And non-debt. एंड नॉन डेट, ठीक है। ये दो तरीके की हो गई। अब इन दोनों को ऐड करोगे, 3 और 4 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा टोटल कैपिटल रिसीट्स, टोटल कैपिटल रिसीट्स। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 2 विल गिव यू टोटल रिसीट्स। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, टोटल रिसीट्स का ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या होगी? टोटल रिसीट की ऑल्टर डेफिनेशन होगी 1 + 2 + 3 + 4। या फिर मैं उसको बोल सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू रोमन 1 + रोमन 2। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? 1 + 2, सॉरी यहाँ नहीं लिख रहा मैं, सॉरी गाइस कन्फ्यूजन हो जाएगा। और लिख सकते हो 1 + 2 + कैपिटल 2 रोमन 2। बात तो एक ही है ना गाइस,
कान में यहाँ से पकड़ूँ कि कहीं कहीं से भी पकड़ लूँ, बात तो सही नहीं चीज़ कर रहा हूँ मैं। टोटल रिसीट समझ में आना चाहिए कि ये सारा सब कुछ मिला के रिसीट साइड बन कैसे रही है। क्लियर गाइस? यस, नो? Yes, sir. रिसीट साइड का अगर न्यूमेरिकल दूंगा तो न्यूमेरिकल कर लोगे? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में आपको एक नॉम से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्सपेंडिचर साइड। So the other one, cash withdrawal, so there was something like Leave that for now. It's a very small item. Again, drawdown of cash is not something which is relevant for you. Now, let's talk about this item, the expenditure side. Now, in terms of the expenditure side, we have a similar concept, which is your revenue expenditure and your capital expenditure. Revenue expenditure is something which is recurring in nature. This is आपको हर साल करना पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है गाइज, ये कहाँ से आया होगा? सोचो. जो लोन लिया होगा, जो हमने बोरोइंग करी थी, जो हमने यहाँ, जो हमने ये पाप किए हैं, अगर इनको आप पाप मान लो, अगर आप इनको पाप मान लो, तो ये जो पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं हम, वो इंटरेस्ट है. ठीक है? अगेन वेरी वेरी लूज दिस थिंग terminology. So this is basically in because of the borrowings that we had done. So a counter element for this is the borrowings done. Then apart from that, the government of India also gives a lot of subsidies. Okay? It gives a lot of subsidies. What are these subsidies? There are three major types of subsidies which are called as 3Fs. 3Fs. एक देती है गवर्नमेंट फूड सब्सिडी, एक देती है फर्टिलाइज़र सब्सिडी. ये तीन मेजर सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स. फूड सब्सिडी किस फॉर्म में देती है? जो पीडीएस में हमें खाना मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. सरकार ने अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कहा है हर आदमी को इंडिया में 67% पॉपुलेशन को 5 kg में खाना हर हाउस होल्ड को पर पर्सन दूंगे एट वेरी चीप रेट्स. 1 रुपी 2 रुपी कुछ प्राइसिंग है. ठीक है? सो अल्टीमेटली सरकार को तो ज़्यादा पड़ता है पैसा. सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी इज़ बेसिकली लॉस ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मीन्स मार्केट प्राइस किसी कमोडिटी का ज़्यादा एंड कॉस्ट, सॉरी, दिस इज से लेट मी चेंज दिस. सेलिंग प्राइस जो है गवर्नमेंट का, इसमें ज़्यादा समझ आएगा. सेलिंग प्राइस जो है गवर्नमेंट का, दैट इज़ लेसर दैन कॉस्ट प्राइस गवर्नमेंट की. जब सेलिंग प्राइस इज़ लेस देन कॉस्ट प्राइस तो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉस बोलते हैं बिजनेस में. सिमिलरली मार्केट में जो हम मार्केट से हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में हम सस्ते रेट का बेच रहे हैं. हम चावल बेच रहे हैं 2 रुपये किलो, सरकार को पड़ रहा है 10 रुपये किलो. तो ये जो 8 रुपये किलो जो है ये सब्सिडी है. ऐसे ही फर्टिलाइज़र के केस में होता है. ऐसे ही फ्यूल के केस के अंदर, फ्यूल के केस में सब्सिडी जो मिलती है वो एलपीजी के फॉर्म में मिलती है. ठीक है? और दूसरी मिलती है केरोसिन पे. डीजल एंड पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं होती है. ठीक है? देन अपार्ट फ्रॉम दैट, बिल्कुल सब्सिडाइज होता है. बीपीएल वालों को 400 रुपये का पड़ता है, हमें 800 रुपये का पड़ता है, 800-900 रुपये का. ओके. देन अब तो सब्सिडी बंद हो जो फर्टिलाइजर की किस फॉर्म में मिलती है? क्या जो फर्टिलाइजर में किस फॉर्म में सब्सिडी मिलती है? फर्टिलाइजर में जिस रेट पे फार्मर फर्टिलाइजर खरीदता है और जिस रेट पे फर्टिलाइजर सरकार को पड़ता है, सरकार फर्टिलाइजर खरीद के फार्मर्स को बेचती है. सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ज़्यादा पैसे में खरीदती है और फर्टिलाइजर सस्ते रेट पे फार्मर्स को बेचती है. हर जगह पे जहाँ पर लॉस हो रहा होगा ना, जहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, दैट्स नथिंग बट अ सब्सिडी. ठीक है? देन एक और फॉर्म ऑफ सब्सिडी हो सकता है कई बार फार्म लोन वेवर, उसको भी एक तरीके की सब्सिडी है जो आप लोन माफ़ कर देते हो लोगों के. सो ना वील ब्रेक इन 2 minutes क्योंकि हमारी क्लास में थोड़ा लेट शुरू होती है. I have a target to finish, so let me just quickly finish a certain portion, फिर we'll break. Then apart from that, establishment expenditures, salaries and pension.
जो सरकार दे रही है वो हमारा सरकार को हर साल हर महीने मुझे सैलरी देनी है। मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, उनको हर महीने उनका पेंशन देना। सो ऑल ऑफ दिस अगेन इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज किस फॉर्म में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तरीके की स्कीम्स चलाती हैं। नाउ यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे किस तरीके की स्कीम्स होती हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्कीम्स। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसको मैं बोलता हूँ स्कैम है कॉन्स्टिट्यूशन पे, एंड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्कीम्स जो होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है, वील सी अ लिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्कीम्स। These schemes can be divided into two major groups. Centrally sponsored schemes. These centrally sponsored schemes, I call them as a scam. I'll tell you why is that a scam. And central sector schemes. Okay, we'll talk more about these 2 schemes in the next class. Then you have transfers to states. हर स्टेट को ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा ऑन रेवेन्यू अकाउंट। दिस इज बेसिकली डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, अगेन मेजरली डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। वी विल सी बोथ ऑफ दीज टर्म्स। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज 3 terms right now. This is for next class. These 4 terms is for next class. But hold on all your questions for then. Similarly, capital receipts, what we will see, कैपिटल रिसीट्स में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का सेंटर का एक्सपेंडिचर, सेंट्रल के लोन्स एंड एडवांसेस टू फॉरेन स्टेट्स, या फिर सेंट्रल के एक्सपेंडिचर को देखने का एक और तरीका होता है, वो होता है या तो आप ग्रॉस बजटरी सपोर्ट देख लो या IEBR देख लो, ठीक है। ये दूसरा तरीका है कि ग्रॉस बजट GBS and IEBR. We will talk about both of these terms in the next class. And once you understand the budget part, the expenditure part of it, उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है ये 4 confusing terms कि fiscal deficit क्या है, revenue deficit क्या है, effective revenue deficit क्या है और primary deficit क्या है। Now my question to you guys is, you can answer two things from this। अभी तक जितना हमारा डिस्कशन हुआ, पहले 2 आंसर कर सकते हो। What is fiscal deficit, guys? Borrowings. दूसरी डेफिनेशन क्या है? What is the second definition? Debt making capital receipts. So you already know 2 definitions. We will add a third definition. इसीलिए मैंने confusing term डाला है कि we will add a third definition to it. Now my question to you is, what is revenue deficit? Can someone tell me revenue deficit क्या होगा? So when expenditure exceeds revenue receipts. Basically जब आपका revenue expenditure जो होगा revenue receipt से ज़्यादा होगा तो वो revenue deficit हो जाएगा, ठीक। तो आपको अभी जो न्यूमेरिकल आएगा आपके पास, उसमें ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए होती हैं हमेशा। उसमें you already know just a second guys, विक्रम 5 मिनट में कॉल करो क्लास में। So you already know these 2 definitions. Now you want to know, you will know these 2 definitions further. ये हम 2 definitions और देखेंगे, and we will also see the third definition of fiscal deficit, so that you don't have the confusion in your mind and you don't have to learn these up. What I don't want for you to do is, I don't want you to mug these up. You should understand these terms and you should be able to calculate these. This is what इसलिए मैंने यहाँ space छोड़ा। We will calculate each of them so that you don't have to learn them by heart. You understand them, and इसके बाद लाइफ में जब भी क्वेश्चन आए, आपको कभी मेमोराइज करके निकालने की कोशिश, मेमोराइज करके ना निकालना पड़े, इमीडिएटली सोचते के साथ ही आपके पास आ जाए कि बॉस ये है ये चीज़, ठीक है। समझ में आएगा आज की क्लास? ओके ग्रेट गाइस। सो with this we have come to an end. So are there any questions? कोई question, कुछ doubts, anything that you would like to ask?